السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو۔ میرے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے بڑے سینئر جرنلسٹ، روزنامہ روشنک کے چیف ایڈیٹر چودھری خالد محمود انجم صاحب۔ چودھری خالد صاحب دورہ برطانیہ پر جس دن سے آئے ہیں، مہمان نوازیاں جو ہیں وہ ان کا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ ان کا پیار ہے یا جو تارکین وطن ہیں ان کی محبت ہے؟ ان سے آج ہم یہ پوچھتے ہیں۔ خالد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو برطانیہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں برطانیہ، چونکہ ہمارا دوسرا گھر بھی ہے تارکین وطن کا، بالخصوص جو میرپور کے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن جتنا پیار لوگوں نے آپ کو دیا ہے، میرے خیال میں بہت کم جو لوگ سیر کے لیے آتے ہیں ان کو یہ نصیب ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قریشی صاحب، میں آپ کا اور آپ کے اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنے چینل پہ انٹرویو کے لیے مدعو کیا۔ اس پہ آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے قریشی صاحب کہ تارکین وطن میں بسنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کے دل ہمارے کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اپنے آبائی جو ان کا علاقہ ہے ان کے ساتھ ان کا ایک ایسا لگاؤ ہے، لگن ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو اس وقت قدر پڑتی ہے کہ تیسری دفعہ میں آیا ہوں، اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے دوست احباب، میرا حلقہ احباب ہے جو وہ اس قسم کا ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا ہے کہ واقعہ ہی مجھے تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا آئے ہوئے، اور 2 3 4 لازمی میرے روز کی اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان دوستوں کی، بزرگوں کی، بھائیوں کی میرے ساتھ ایک پیار، محبت، انس اور لگن ہے جو وہ اس طرح مجھے اپنے مختلف پروگرامز میں مدعو کر کے تو وہ اپنا اس کو پورا کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ظاہر ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے، جب آپ لوگوں کو پیار دیتے ہیں تو یہاں پر جب آتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو اسی طرح پیار دیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ چونکہ دوسری یا تیسری دفعہ آئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں برطانیہ کا اور آزاد کشمیر کے اندر جو یہاں وہاں کا انفراسٹرکچر ہے، کون سی ایسی ضروریات ہیں جو کہ وہاں پر فوری طور پر اگر برطانیہ کو دیکھا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی ضرورت ہے اور وہاں پر فوری طور پر امپلیمنٹ ہونی چاہیے؟ وہ کون سی ایسی ضروریات ہیں؟ لیکن قریشی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی آپ صرف وہاں پہ تو ہمارا ایک وہ مشہور نعرہ ہے نا کہ جو بھی حکومت آتی ہے کہ ہم سڑکوں کے جال بچھا دیں گے۔ سڑکوں کے جال تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ تو جو بچھے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت بہتر پتہ ہے۔ یہاں اگر اس کی نسبت دیکھا جائے تو سڑکوں کے اصل جال تو یہاں پہ ہیں۔ سب سے پہلی ہماری جو بنیادی وہاں پہ ضرورت بھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ سڑکیں جب تک نہیں ہوں گی تو ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ منقطع رہتا ہے، یا اگر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں تو جس طرح مریض ہوتے ہیں ہمارے یا اور کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے کہ جلدی کہیں جگہ پہنچنا ہوتا ہے تو وہ سڑکیں خراب ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پاتے، اور بعض دفعہ سپیڈ وہ زیادہ کرتے ہیں اور سڑکیں خراب ہوتی ہیں، اس وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہوتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری حکومت کو جو وہاں پہ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم، زیادہ نہیں تو سڑکوں کی طرف سب سے پہلے ان کی اولین ترجیح ہے جو وہ سڑکوں کی طرف ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، سڑکوں کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن خالد صاحب، ایک بات میں نے اکثر نوٹ کی ہے کہ گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ خاص کر جو موٹر سائیکل پر جو لوگ سفر کرتے ہیں کہ آپ سیفٹی ہیلمٹ جو ہے اس کا استعمال کریں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود ایک پتہ مجھے کہ اس سے میری جان جا سکتی ہے، لیکن ہم پھر بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، یہ اپنا نقصان کر دیتے ہیں۔ آئے روز نوجوان، آپ نے بھی دیکھا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ بے شمار ہمارے قیمتی نوجوان جو ہے وہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے، حادثوں کی وجہ سے
हेलमेट ना सेफ्टी ना होने की वजह से जो है हम खुद अपना नुकसान क्यों करते हैं? बिल्कुल, ये आप जो बात जिस बात की तरफ आपने निशानदेही की है, बहुत ही ये ज़बरदस्त पॉइंट है आपका। कई साहब, गुजारिश ये है कि मुख्तलिफ़ NGOs भी वहाँ पे मीरपुर में आगाही मुहिम हेलमेट पहनने के हवाले से वहाँ पे करती रही हैं। वहाँ पे मुस्लिम हैंड्स एक फ्लाई चैरिटी है, मैंने भी उनके साथ वहाँ पे उनके साथ मिल के हमने वहाँ पे हेलमेट तकसीम किए। लेकिन इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हेलमेट तो लोगों ने फौरी तौर पे फ्री समझ के ले लिए, लेकिन मैं अल्फन ये कह सकता हूँ कि मैंने उन हेलमेट में से किसी सिंगल बंदे को भी नहीं देखा जिसने वो हेलमेट वहाँ पे पहना हो। और ये नहीं है कि मुस्लिम हैंड ने सिर्फ मीरपुर में ये तकसीम किए, उन्होंने भीमबर में, कोटली में, हमारे तकरीबन आलमोस्ट पूरे आज़ाद कश्मीर में हेलमेट जो हैं वो तकसीम किए। लेकिन लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन इस तरफ बिल्कुल किसी का तवज्जो नहीं है। कानून की हुक्मरानी तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी कानून बनता है फौरी तौर पर लोग जो है उस पर अमल करते हैं। देख लें, गाड़ी में लोग जो है वो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, इसी तरह मोटरसाइकिल देख लें, हर आदमी जो है वो उसकी पाबंदी करता है। अब ओवर स्पीड जो है बड़ी पाबंदी है यहाँ पर, लोग जो है वो कम से कम जो रोड के मामलात हैं उनको देख कर चलते हैं। एक बात और खालिद साहब, मीरपुर चूँकि बड़े लोगों का, अमीरों का शहर है, बाहर ओवरसीज़ का शहर कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो करोड़पति, जो ये लफ्ज़ तो अब मेरे ख्याल में अरबपति होना चाहिए, करोड़पति तो अब ख़त्म होना चाहिए। लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद मीरपुर शहर में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो लोगों का इलाज कर सके। ज़रा किसी बंदे को हार्ट प्रॉब्लम होती है, किसी आदमी को कोई फालिज का अटैक होता है, कोई बीमारी कैंसर है, तो फौरी तौर पर जी इसको इस्लामाबाद ले जाओ, इसको लाहौर ले जाओ। कई लोग तो सिर्फ ले जाने की वजह से रास्ते में गुजर खान के करीब या गुजरात के करीब पहुँचे हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। इतना सरमाया होने के बावजूद क्या वजह है कि मीरपुर में कोई इस तरह का हॉस्पिटल नहीं बन सका? ये तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी हुकूमत की नालायकी इसको कह सकते हैं। थोड़ा सख्त लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, ये उनकी नालायकी है। और यहाँ पे ओवरसीज़ कश्मीरियों ने ही हमेशा, तो जब भी कोई भी आफत आई, कोई भी इस तरह का इशू हुआ, तो हमारे जो ओवरसीज़ हैं इनने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसी तरह इन दिनों बैरिस्टर आबिद साहब हैं, वो भी अपनी एक NGO है उनकी, उसको वो ज़ाती दोस्तों के साथ मिल के, जितने उनके दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब है या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ मिल के तो वो चित्रपड़ी के मकाम पे एक बहुत बड़ा जो है वो हार्ट का हॉस्पिटल वो शुरू करने जा रहे हैं। ये एक हमारे बहुत अच्छी बात पूरे कश्मीर के लिए और बिलखसूस मीरपुर डिवीज़न के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी की ये बात है, क्योंकि जब भी वहाँ से अक्सर जब भी कोई हार्ट अटैक होता है तो फर्स्ट एड के तौर पे अल्लाह जन्नत में जगह दे अपना आजी सलीम साहब को, उन्होंने वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया था वहाँ पे मीरपुर में, जिसको अभी तक भी जो है उनके जो फर्जंद अर्जमंद हैं राफे सलीम साहब, वो वहाँ पे उसको जितना भी कोई अखराजात होते हैं वो करते हैं। देखने में लोग ये समझते हैं कि शायद ये सरकारी है, लेकिन वहाँ पे जितनी दवाइयाँ हैं, बाकी जो सिस्टम हैं, वो काफ़ी उसमें जो ज़ाती गिरा से वो जो है कर रहे हैं राफे साहब। मैं समझता हूँ अल्लाह पाक उनको भी इसका अजर अजीम दे और हाजी साहब को भी अजर अजीम दे, जिन्होंने ये एक चीज़ वहाँ पे बनाई थी, जिसका हमने वहाँ पे बुनियाद रखी थी, जिसका हमारे वहाँ पे बसने वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और अब जो बैरिस्टर आबिद साहब ने ये जो एक अपने कंधों पे ये एक उन्होंने बर्डन इसको समझा, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा बर्डन है, लेकिन अल्लाह पाक हम भी दुआ करते हैं कि उनको इसमें कामयाबी दें। और मैं आपके चैनल के वसातत से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को ये कहूँगा, गुजारिश करूँगा, अर्ज़ करूँगा कि उसमें जितना अपना हिस्सा हम लोग डाल सकते हैं, सबको अपना अपना हिस्सा अपनी जेब के हिसाब से उसमें डालना चाहिए। वो किसी फ़र्द वाहिद का हॉस्पिटल नहीं होगा, वो हम सब का है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वही हमारे लिए आगे आखिरत में भी यही चीज़ें काम आएंगी। तो बैरिस्टर साहब के लिए हम दुआ गो हैं कि वो खालिद साहब, इसके अलावा आप चूँकि बरतानिया आए हैं, आपने देखा कि तकरीबन
10 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ जिनका तल्लक मीरपुर से है, डिवीज़न मीरपुर से या ज़िला मीरपुर से, जो मुतासरीन मंगला डैम की अक्सरियत यहाँ पर मौजूद है। लोगों के बेशुमार वहाँ पर मसाइल हैं, लोगों की जायदादें थी, पीछे जो लोग थे उन्होंने कब्ज़े कर लिए, प्लाट थे उन पर डबल फाइलें बनकर लोगों के जो है उनको अलाट कर दिया गया, किसी और के नाम कर दिया गया। ये सारा कुछ ओवरसीज़ के साथ हो रहा है। क्या हमारी हुकूमतें ये सब कुछ देख नहीं रही है, और क्यों ये ओवरसीज़ जो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं उनके साथ ये मजाक हो रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं जी, देखें हुकूमतें सब कुछ देख रही हैं, और वो फिर पहले भी मैंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, अभी भी यही कहूँगा कि जो हमारे बेसिकली ब्यूरोक्रेट है ना, वो कुरैशी साहब किसी तरफ हुकूमत में जो लोग आते हैं उनको शायद ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं ये अपने इनके ज़ाती मफादात होते हैं, ये अपने चक्रों में उनको किसी तरफ लगने नहीं देते हैं, जिसका खालिस्तन नुकसान है जो वो ओवरसीज़ कश्मीरियों को हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये जो हालात जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात बने कि हमारे जो ये ओवरसीज़ कश्मीरी हैं ये अपने मुल्क से अपनी नज़रें जो है वो चुरा लें और वहाँ ना जाएं। हमारी जो आने वाली नई नस्लें हैं वो जब हमारे इन बातों को, इन चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, तो शायद वो उस तरफ का रुख ना करें। इसलिए खुदारा अभी भी वक्त है, हमें संभल जाना चाहिए। और जो हमसे पहले माजी में गलतियाँ हुई हैं और गलतियों की रोकथाम के लिए सबसे बेहतर यही है कि इन ओवरसीज़ कश्मीरियों के जो मसाइल हैं इनको हल किया जाए। ये यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट के हमारा वहाँ पे ख्याल करते हैं, लेकिन इनको हम बदले में क्या देते हैं? ये इनको बदले में तो हम सिर्फ यही देते हैं कि ये एयरपोर्ट से जब उतरते हैं वहाँ से लेकर वापस एयरपोर्ट वापसी तक इनको ऐसे मसाइल में हम धकेल देते हैं कि ये 4 हफ्ते 6 हफ्ते की जाने का नाम नहीं लेते, 4 हफ्ते 6 हफ्ते की छुट्टियाँ लेके एंजॉय करने के लिए अपने अजीज़ अकारब को मिलने जाते हैं। लेकिन वहाँ पे इन पे इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो मुख्तलिफ इलू बहानों तो इनको इस तरह के मसाइल में उलझा देते हैं कि ये वहाँ पे जाने का दोबारा नाम नहीं लेते। खालिद साहब, आप दौरा मुख्तसर करके वापस वतन जा रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारा और आपका जो है रिश्ता मजबूत रखे, और आप जब भी दिल चाहे यहाँ आए, हम आपको हमेशा खुशामदीद कहेंगे और इसी तरह ये प्यार चलता रहे। आखिर में आप तारकीन वतन के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहती हैं? मैं यही कहूँगा, तारकीन वतन है जो हमारे, जिस तरह मुझे यहाँ पे प्यार मोहब्बत इन्होंने दिया है, मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह जो भी पाकिस्तानी वहाँ से यहाँ पे आता है, कश्मीरी आता है, उसको ये इसी तरह देते हैं। और मैं ये उम्मीद रखूँगा, मेरा ये इसको आप पैगाम भी समझ लें कि जो भी वहाँ से दोस्त अहबाब आएँ उनको यहाँ पे जिस तरह मुझे आपने इज़्ज़त दी है इस तरह ही उनको भी दें, ताकि वो यहाँ से एक अच्छी चीज़ यहाँ से लेके वहाँ जाएं और ये मैसेज वहाँ पे जाके दें कि जब हम वहाँ जाते हैं तो कश्मीरी जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं, और जब ये ओवरसीज़ कश्मीरी वहाँ पे जाते हैं तो हम इनके साथ क्या सलूक करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि जिस तरह मुझे दोस्तों ने प्यार मोहब्बत दिया है, इसी तरह तमाम आने वालों को इसी तरह प्यार मोहब्बत दे के जो हमारे कश्मीरियों के साथ ओवरसीज़ के जो एक गठजोड़ है उसको मज़ीद मजबूत करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो हमारे मीरपुर के ज़िंदा दिलान साफ़ी हैं, जब भी आपको बिलखुसूस तारकीन वतन में बसने वालों को कोई भी मसला हो तो आप इनसे रब्ता किया करें। ये आपके मसाइल को हर मुमकिन हल करवाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम।